Good afternoon. How are you? All well? सब कुछ ठीक नहीं है. Ex-President of France has made a statement about the Prime Minister of India. I'd like to read it. He says, with regard to the Rafale contract, we didn't have any say in this matter, Hollande told Mediapart. It is the Indian government which has proposed this service group and Dassault who negotiated with Ambani. We didn't have the choice. We took the interlocutor who was given to us. Now, what the ex-president of France is saying is that the Prime Minister of India is a thief. That is what this statement is saying. And it is very important for the Prime Minister of India now to either accept Mr. Hollande's statement and say, yes, Mr. Hollande is telling the truth. Mr. Narendra Modi gave the Rafale contract and 30,000 crores to Mr. Anil Ambani, or Mr. Hollande is not telling the truth, and here is the truth. Because for the first time, probably in Indian history, an ex-French president is calling our Prime Minister a thief. So it is very important that the Prime Minister makes it very clear what his position is. It is a question of the dignity of the office of the Prime Minister. It is a question, it is a defense-related question, it is a question of the future of our Jawans, the future of our soldiers, the future of our Air Force. And what I'm surprised by is that the Prime Minister is completely silent. Not one word has come out of the Prime Minister's mouth about this comment. After all, this gentleman is not just any person. This gentleman is the ex-president of France who had a one-to-one meeting with the Prime Minister where the Rafale contract was decided. So, थोड़ा मैं हिंदी में बोलता हूं. फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने एक स्टेटमेंट दी है. उनका कहना है कि अनिल अंबानी की कंपनी को चुनने में उनका कोई डिसीजन नहीं था. फ्रांस के राष्ट्रपति, एक्स राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अनिल अंबानी को जो हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी के कहने पे दिया गया था. मतलब फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं. हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी सफाई देनी चाहिए. क्या ये जो होलैंड एक्स प्रेसिडेंट फ्रांस ने कहा है, क्या वो सच है या नहीं? और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है. जवानों के भविष्य की बात है, डिफेंस की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट. अब फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति ने कहा है कि 30,000 करोड़ रुपए का तोहफा, फ्री गिफ्ट नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अनिल अंबानी जी को दिया है. यह रियलिटी है. यह मैं आपसे कहना चाह रहा था. I'm sorry, we'll not be able to take questions like this. We'll have to take one by one. Can we have someone from PTI? It is very clear. The French government has given a statement which is stating what the procedure is. Everybody knows what the procedure is. Here, there was a one-on-one meeting between the Prime Minister of India and the ex-President of France. In that meeting, the contract was signed, and the ex-President of France has now said
that in that meeting I was clearly told that the contract had to go to Mr. Anil Ambani. It is now up to the Prime Minister of India to clear his name. We are absolutely convinced that the Prime Minister of India is corrupt. This question is now clearly settled into the mind of the Indian people. That देश का चौकीदार चोर है, यह दिमाग में घुस गया है. अब मैं प्रधानमंत्री की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं. मैं उनसे कह रहा हूं, कृपा करके सफाई दीजिए. मैं आपकी ऑफिस की रक्षा करना चाह रहा हूं. आप सफाई दीजिए, जनता को बताइए कि यह जो हॉलैंड है, फ्रांस का राष्ट्रपति है, यह सही नहीं बोल रहा है. मगर आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है. I'll come to you. आपने डिफेंस मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा, उन्होंने दिया नहीं. आपने वित्त मंत्री का इस्तीफा मांगा, हालांकि के मामले में उन्होंने दिया नहीं. तो क्या आज आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे जब आप देखिए, पहले डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, पहले एक्स डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि जब कॉन्ट्रैक्ट बदला गया मुझे नहीं मालूम था. गोवा की फिश मार्केट में वो मछली खरीद रहे थे. ठीक है. उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर कहती है, सीतारमण जी कहती हैं कि मैं पूरे देश को हवाई जहाज की प्राइस बता दूंगी. उसके कुछ ही दिन पहले बाद कहती है नहीं नहीं नहीं, नेशनल सीक्रेट है, मैं राफेल हवाई जहाज की प्राइस देश को नहीं बता सकती हूं. उसके बाद मैंने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी, मैक्रोन जी के साथ हमारी मीटिंग हुई. उस मीटिंग में आनंद शर्मा जी थे, उस मीटिंग में एक्स प्राइम मिनिस्टर बैठे थे और शायद उस मीटिंग के रिकॉर्ड भी होंगे. उस मीटिंग में मैक्रोन ने सीधा बोला कि प्राइस इज नॉट इन एनी सीक्रेट एग्रीमेंट. हिंदुस्तान की सरकार राफेल की प्राइस किसी को भी बताना चाहती है, बता सकती है. निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में 2-3 उल्टी चीजें बात की, उल्टी चीजें बोली, बट बेसिकली झूठ बोला. सच्चाई क्या निकली? जो हवाई जहाज 526 करोड़ क्या यूपीए ने खरीदा था, वो नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी की मदद करने के लिए अनिल अंबानी के जेब में 30,000 करोड़ रुपए डालने के लिए 1,600 करोड़ रुपए में खरीदा. और यह साबित हो गया है. अनिल अंबानी जी ने कॉन्ट्रैक्ट के 12 दिन पहले एक नई कंपनी तैयार की. अनिल अंबानी ने कभी हवाई जहाज नहीं बनाया. एचएएल से आपने कॉन्ट्रैक्ट छीना. निर्मला सीतारमण जी कहती हैं एचएएल तो ये कर ही नहीं सकता. और एचएएल के सीनियर ऑफिसर ने बोला कि नहीं, झूठ बोल रही है. कुछ ही दिन पहले न्यूज़पेपर में आया कि नहीं, एचएएल बिल्कुल डिलीवर कर सकता था. तो रियलिटी यह है कि एक के बाद एक लोग झूठ बोल रहे हैं. और झूठ किसके लिए बोल रहे हैं, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी बिल्कुल क्लियर है. निर्मला सीतारमण जी ने, पारिकर जी ने, अरुण जेटली जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया. नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. तो पूरा का पूरा प्रोटेक्शन प्रधानमंत्री की रक्षा का है. बट जो भी वो कहना चाहते हैं कहें. हिंदुस्तान के युवाओं, आप एक बात अच्छी तरह सुनो. आपने नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया था. नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट स्वयं पर्सनली अनिल अंबानी जी को दिया. अनिल अंबानी जी ने अपनी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया. अनिल अंबानी जी का 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है. अनिल अंबानी जी ने कंपनी 10 दिन पहले खोली. नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला, हिंदुस्तान के जवानों के जेब में से पैसा निकाला, उनके परिवारों के जेब में से पैसा निकाला और अनिल अंबानी के जेब में डाला. मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति पे आपने भरोसा किया था, उस व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा है. और आज
जब फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं कि नहीं, फ्रांस की सरकार डसॉल्ट ने अनिल अंबानी को नहीं चुना, नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी को चुना, तो आपके और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। सन्नाटा छाया हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर बोलेंगी, अरुण जेटली जी बोलेंगे, मगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते, मैं आपको बताता हूं। और आपने देखा होगा युवाओं पार्लियामेंट में, जब मैं उनके सामने खड़ा था और जब मैंने उनके सामने ये चीजें रखी, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज, 1600 करोड़, अंबानी जी का जीरो एक्सपीरियंस, एचएल का 70 साल का एक्सपीरियंस, 10 दिन पहले कंपनी खुलती है। नरेंद्र मोदी जी ने मैं आंख में आंख नहीं मिलाई, जैसे मैं आपकी आंख में देख रहा हूं ना, ऐसे नहीं किया। जब मैंने उनसे बोला नरेंद्र मोदी कभी इधर देखें, कभी उधर देखें, कभी उधर देखें, कभी उधर देखें, देश का चौकीदार चोरी कर गया। थैंक यू वेरी मच। हाँ, Let's we three people. look, we do not, these are not decisions that we take the way the Prime Minister takes them. Okay? There is one thing which is very clear. There is clear-cut corruption in the Rafale deal. Rafale के मामले में 100% भ्रष्टाचार हुआ है और डिसीजन प्रधानमंत्री ने लिया है और फायदा उसी व्यक्ति को मिला है जो प्रधानमंत्री के साथ डेलीगेशन में फ्रांस में गया था। सीधी बात है। तो इंक्वायरी होगी, जेपीसी होनी चाहिए। अरुण जेटली जी ने बड़े अच्छे ब्लॉग लिखे हैं, मगर जब जेपीसी का सवाल उठा, अरुण जेटली जी चुप हो गए। लाइए जेपीसी, उसमें होलैंड जी को भी बुला लेंगे, सब पता लग जाएगा। थैंक यू।